he has around 1 hour and 15 minutes if the time will permit. At least 1 hour he has, and since most of the tables which have been made optional in the case of annual return, so only few tables are left for Mr. Anuj to explain, but at the same time he will be explaining which of the tables have been made optional for the year 2018-19. Friends, with these words I invite Mr. Anuj Bansal, our dynamic and today's speaker on annual return. Please, Anuj ji. Thanks for your kind words, sir. Respected Nikita ma'am, National President AFTP, respected Priyamata ma'am, past President AFTP, Dr. Keshav Ram, Chairman of the session, Program Director Mr. H.L. Madanji, and he's also my guru. I represented with him in not many matters. Then Vice President North Zone A.K. Srivastav ji, Chairman Sir, North Zone Asim Zafar ji, Guest of Honor Rohit Vaswani ji, Samir Jani ji, and all other my seniors, Batra sir, Bhatia sir, and my friends. First of all, thanks for giving me this opportunity to make presentation on GSTN. It's really an honor for me to present before luminaries in the field of indirect taxes. This GSTN involves lot of confusions, lot of discussions, because there is always confusion in which column the details to be reported, where the details to be reported. So basically when we do physical conference, so it's always an open discussion kind of thing which we do. But due to limitation of the virtual conference, we cannot open the floor. But however, I request host to please allow Madan sir, Rohit Vaswani sir to please keep unmuted. So sir, Madan sir, Rohit Vaswani sir, you can always correct me during the presentation. You can do value addition during the presentation, and also you can raise queries and for the benefit of all, even in between the presentation. थोड़ा हिंदी में भी बोल सकते हैं अनुज जी. Thank you sir, thank you sir. So sir, I'm just sharing my Puneet, please allow me to share my presentation. Sure. I think I'm audible and my presentation is also there on the screen. Yes. Yes, sir. Sir, basically the topic which has been given to me is concept, preparation and filing of GSTN. मुझे 3 टॉपिक दिए थे सर, concept, preparation of GSTN and filing of GSTN. Concept में सर मदान सर ने जैसे बताया, concept includes purpose of GSTN and the legal provisions related to GSTN. And thereafter, preparing and filing of GSTN includes जो GSTN के कॉलम्स हैं और जो इंस्ट्रक्शंस और अमेंडमेंट्स आए GSTN में, जैसे कि सर ने बताया कि काफी कॉलम्स ऑप्शनल हो गए GSTN में, सो दोज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय प्रेजेंटेशन. तो इसको मैंने 2 पार्ट में प्रेजेंटेशन को डिस्कस करना है. एक फर्स्ट इज कंसेप्ट, द अदर इज फॉर्म GSTN. पर्पस ऑफ GSTN, जैसे मदान सर ने कहा है कि हमें जो हमने फाइल किया है कि वो करेक्ट है या नहीं है, या उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और ये मेरी फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है GSTN को करेक्ट करने की. जैसे रोहित वासवानी सर कह रहे थे यूपी में क्या होता था, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, कि पहले नॉर्मल रिटर्न्स में कुछ भी फाइल करते थे, पर जब असेसमेंट होता था उससे पहले हम एनुअल रिटर्न फाइल करते थे जिसके बेस पे मेरा असेसमेंट होता था. बिल्कुल सिमिलर फैशन में जिस तरीके से मेरी रिटर्न्स पहले फाइल हुई उसमें हमने बहुत शुरू में गलतियां करी, 17-18 में करी मैक्सिमम, फिर 18-19 में भी कुछ गलतियां करी. पर अब जो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है GSTN को अपडेट करने की है, जो मेरे जो गलतियां उनको करेक्ट करने की हैं. पर सर मदान सर ने जो समझाया, पर मैं यहाँ पे एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि इनिशियली गवर्नमेंट की इंटेंशन यहाँ पे अमेंडमेंट करने की नहीं थी. इनिशियली गवर्नमेंट ने जो ये कहा था कि आपने जो GSTR 1 फाइल करी है उसके बेस पे GSTR 9 फाइल करो, जो डेटा GSTR 1 में आपने डाला है उसको क्लब करो, उसको इकट्ठा करो और GSTR 9 में उसको रिपोर्ट कर दो, उसके बेसिस पे टैक्स दे दो. When thereafter, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 31 ऑफ 2019, गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी एडिशनल लायबिलिटी भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं. जब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि इतनी चीजें परफेक्ट नहीं थी पहले की, हर चीज जो फाइल करी है रेगुलर रिटर्न में कि वो ठीक ही थी, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 से
आपको अलाउ किया कि आप एडिशनल लायबिलिटीज डिक्लेयर कर सकते हैं, एडिशनल टैक्स दे सकते हैं, पर एडिशनल क्रेडिट्स आप नहीं ले सकते जो है। देन इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेलेवेंट प्रोविजंस कौन से हैं जीएसटीआर 9 के। सर जीएसटीआर 9 के रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ सीनियर मेंबर्स भी हैं, कुछ जो जूनियर मेंबर्स भी हैं जो जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि कुछ प्रोविजन डिस्कस करना जरूरी है कि एक बेस बनाने के लिए कि हमारी जीएसटीआर 9 है क्या। सर section 44(1) which says that every registered person shall furnish an annual return before 31st December of the following year. 31st December 17, 18, 19 का हमेशा extend होता रहा है, so that this is just 31st December, so which is mentioned in the law. Then it is not applicable in the case of input service distributor, persons paying tax अंडर सेक्शन 51 जो टीडीएस पेमेंट करते हैं जीएसटी के अंदर, या जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं जीएसटी के अंदर, उन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देन इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स दे आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स आर दोज पर्सन्स, सपोज जो लोग, जैसे सपोज एग्जांपल देते हैं, प्रगति मैदान में एग्जीबिशन में लोग डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं इंडिया में, और यहाँ आकर वो अपना सामान बेचते हैं और यहाँ पे टैक्स पे करके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंदर यहाँ अपना टैक्स पे करके वो वापस चले जाते हैं। तो उस तरह के लोगों को अपनी ये रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देन सिमिलर टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आर दोज पर्सन्स who undertake transactions involving supply and who has no fixed place of business in India, उन लोगों को भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के अंदर, नोटिफिकेशन 30/2019 के में कहा कि ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर्स को जीएसटीआर 9 फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डीलर्स हैं, उनके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट नोटिफिकेशन, एक्चुअली माय स्लाइड इज नॉट मूविंग, जस्ट लेट मी चेक। Puneet, please allow me to share my slides again, because somehow my slide is not moving. You can. Then there was a notification number 47, along with a circular number 124. As per notification and the circular, annual return was made optional for the year 17-18 and 18-19 for the dealers whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 2 crore rupees. So aggregate turnover here means, हम सब जानते हैं, क्योंकि aggregate turnover हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, it includes all kind of turnovers, taxable, exempted and all kind of turnovers under a single pan. Under a single pan means कि पूरे इंडिया की जितने भी स्टेट की सारी टर्नओवर है वो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा एग्रीगेट टर्नओवर में। अगर वो मेरी 2 करोड़ से नीचे है तो मेरे को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर रिटर्न फाइल ना करने की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वी हैव एन ऑप्शन टू फाइल रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, अदरवाइज इट इज डीम्ड टू हैव बीन फर्निश्ड। इट इज नॉट लाइक कि मैंने फाइल करना नहीं है, वो डिपार्टमेंट कहेगा इट इज डीम्ड टू हैव बीन फर्निश्ड। इट मींस कि जो आपने डिटेल अपनी रेगुलर रिटर्न्स में फाइल करी थी, दोज आर द फाइनल डिटेल्स एंड दे हैव एक्सेप्टेड दोज डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, असेसमेंट्स एंड अदर थिंग्स। Then after the due date, the common portal shall not permit furnishing of form GST 9. Circular of the department says that once the due date is gone, the common portal will not allow furnishing of form GST 9. यहाँ पे मेरा व्यू है कि अगर हो सकता है मदान सर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि पोर्टल अभी हमारी इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर रहा कि ऑल इंडिया की 2 करोड़ की उसने पोर्टल ने अपना कैलकुलेशन कर ली, या पोर्टल ने मुझे ऐसे 17-18 के लिए बाहर नहीं किया कि मैं ड्यू डेट के बाद भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो इस प्रोविजन से मेरा मतलब ये है कि अगर 2 करोड़ से नीचे के भी जो डीलर हैं जिनको लगता है कि उनकी रिटर्न में कुछ अपडेट करने की जरूरत है, कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है, सो दे कैन फाइल देयर रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, एंड व्हाटएवर returns they have filed as a regular returns, those details will be accepted in the annual return. Other provisions are so was inserted Wide Amendment Act, Finance Act 2019.
in that the commissioner was given the power. Basically, the commissioner may, on the recommendation of the council, extend the time limit for furnishing the annual return. In this provision, the power was given to the commissioner to extend the date for furnishing the annual return. टाइम लिमिट जो मेरी 17-18 की एनुअल रिटर्न की थी वो थी 5 फरवरी 2020 एंड 7 फरवरी 2020. फॉर फ्यू स्टेट्स इट वाज 5 फरवरी और कुछ स्टेट्स के लिए मेरी 7 फरवरी थी. 18-19 की एज ऑन डेट मेरी जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2020, जो कि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी. सब वेट कर रहे हैं कि एक कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये एक्सटेंड करेंगे डेट. शायद मदान सर इस पे ज्यादा क्लैरिफाई कर पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का एक क्वेश्चन होगा कि 2020 की 18-19 की रिटर्न एक्सटेंड होगी या नहीं होगी. देन रूल्स 81, एज पर रूल 81 GSTR एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन GSTR 9. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर. As per section 46, notice for return defaulters. If a person registered person who fails to furnish return under section 39, 44 or 45, a notice shall be issued requiring him to furnish return within 15 days. तो इसका सिंपल है कि अगर आपने सेक्शन 44 जो इसमें लिखा हुआ है उसमें आपने डिफॉल्ट किया तो आपको नोटिस मिलेगा within 15 days to furnish your return. Notice shall be issued as per rule 68, which says that notice shall be issued electronically in form GSTR 3. आपको नोटिस इशू होगा. अब 3A में जब जाते हैं तो 3A में जो फॉर्म में कहते हैं कि योर लायबिलिटी विल बी असेस्ड अंडर सेक्शन 62. अब मैं सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सेक्शन 62 में आता हूं तो वहां अगर मैं देखता हूं तो वहां लिखा है वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और 45. It is not talking about section 44. Even after the service of the notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgment. तो अब आज की डेट में मैं अगर डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 में होता था, जहां पे पावर ही नहीं दी हुई कि एनुअल रिटर्न की एब्सेंस में नॉन फाइलिंग पे मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है. राइट. If we go to the FAQs released by the department, that is dated 15th December 2019, which says if a person fails to furnish a return under section 39, 44 or 45, a notice in form 3A shall be issued requiring him to furnish return within 15 days. If within 15 days returns are not furnished, an order for assessment shall be passed and this order of assessment shall be made by the proper officer to the best of his judgment. तो FAQs हम देखते हैं तो FAQs में कहते हैं अगर एक डीलर ने सेक्शन 44 में रिटर्न फाइल नहीं करी तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में वो उसका असेसमेंट कर सकते हैं. पर अगर हम प्रोविजंस देखते हैं तो प्रोविजंस में कहता है सेक्शन 46 में उसे कहते हैं कि नोटिस दे सकते हैं. रूल 68 में भी कहते हैं कि GSTR 3A में नोटिस दे सकते हैं, पर नोटिस में लिखा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन 44 को कवर ही नहीं करता. तो यहाँ पे थोड़ा गैप आता है और FAQs में कहते हैं कि हम नोटिस दे सकते हैं और उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं. Then penalty provisions. Penalty provisions are section 47(2), which says 100 for every day each under CGST and SGST to the maximum of 0.25% of the turnover each under CGST and SGST. So the penalty जो मेरी है 200 rupees per day की होगी CGST plus SGST को मिला के to the maximum of 0.25% each under CGST and SGST. अब ये एक मेरा कहते हैं कि सपोज मेरे पास मैं 4 स्टेट्स में काम कर रहा हूँ, 4 GSTN नंबर है मेरे पास, मेरा टोटल टर्नओवर तो 5 करोड़ रुपए है जिसमें मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, पर मेरा सपोज महाराष्ट्र में टर्नओवर नील है. अब मैंने महाराष्ट्र की रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या मेरे पे पेनल्टी लग सकती है? तो इन माय व्यू पेनल्टी नहीं लग सकती, क्योंकि वहां पे जो मेरा मैक्सिमम टर्नओवर है 0.25% ऑफ द टर्नओवर, अगर मेरा नील टर्नओवर है, अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं भी कर रहा हूँ तो मेरे पे पेनल्टी प्रोविजन इन्वोक नहीं हो सकता. अब नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगर चलो 47(2) में मेरे पे पेनल्टी नहीं लग सकती तो क्या सेक्शन जनरल पेनल्टी मेरे पे इंपोज हो सकती है सेक्शन 125 के अंदर? तो इन माय व्यू जनरल पेनल्टी कैन आल्सो नॉट बी इंपोज. उसका रीजन क्या है कि जनरल पेनल्टी वहां पे होती है जहां पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं है लॉ में. यहाँ पे मेरे पास सेक्शन 47(2) में पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है पर उसकी कैलकुलेशन से मेरी नील पेनल्टी आती है.
तो अगर मैं नील की रिटर्न अगर मैं नहीं भी फाइल करता कहीं पे, तो मेरे पे पेनल्टी इंपोज इस प्रोविजन के हिसाब से, इन माय व्यू इट कैन नॉट बी इंपोज। नेक्स्ट सर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटीआर 9 विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। इसके सर 6 पार्ट्स हैं जो हमारा जीएसटीआर 9 की रिटर्न है। In the first part, they talk about the basic details. Most of these details are auto-populated from the system. Part second है जो मेरा outward और inward supplies. Inward supplies इधर मतलब है inward supplies related to RCM. वो इनकी discuss करता है. Column number 4 and 5 हैं. Then third is basically related to ITC details. ITC details मेरी जो मैंने ITC लिए, जो मैंने reversal किए और जो मैंने reconciliation किए 2 से, वो मेरे part 3 में covered होंगे. पार्ट 4 जो है वो मेरा रिकंसिलिएशंस ऑफ टैक्स पेमेंट है। पार्ट 5 मेरी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, पार्ट 5 मेरी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मेरी 18-19 की हैं और 19-20 में मेरी रिपोर्ट हुई है अप टू सितंबर। इसकी डिफरेंट टेबल्स हैं 10, 11, 12, 13, 14 और सब कैलकुलेशन होती है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। देन पार्ट 6 जो होता है मेरा 15 और 16 नंबर कॉलम्स हैं जो मेरे रिफंड की डिटेल्स, डिमांड्स की डिटेल्स और परचेजेस फ्रॉम कंपोजिट डीलर्स उनकी डिटेल्स हैं, जो कि हालांकि काफी इनमें से डिटेल्स ऑप्शनल हैं, तो अभी अब बाद में डिस्कस करते हैं इसमें। सर जो इसमें सबसे पहला जो हम कंसेप्ट ये देखते हैं, जैसा कि चेयरमैन सर ने भी अभी पूछा कि जो बुक्स के साथ रिकंसिलिएशन होता है, सर इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मैं आउटवर्ड साइड से बात कर रहा हूँ खाली अभी, कि मैं कॉलम पार्ट 2 में मुझे 18-19 की डिटेल्स रिपोर्ट करनी है और पार्ट 5 में मुझे 18-19 की जो 19-20 में रिपोर्ट हुई है रिटर्न्स में वो रिपोर्ट करनी है और 10 और 11 कॉलम्स वो मेरे आउटवर्ड से रिलेटेड है। तो अगर मैं पार्ट 2 को और पार्ट 5 को 10 और 11 कॉलम्स को ऐड करता हूं तो वो मेरी बुक से मैच होनी चाहिए। पर इसमें कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक्रूअल बेसिस होता है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होते हैं कि वो मेरे मैच नहीं करते आपस में, और प्रिंसिपल एजेंट सर्विसेज हैं, जॉब वर्क पे जा रही है ट्रांजेक्शन, तो उन रीजन से हमेशा इसमें डिफरेंस आ सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इसमें डिटेल्स जो मेरी रिटर्न्स में गई हैं और बुक के हिसाब से जो 18-19 के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से इसमें से डिटेल निकालता हूँ, फिर उसके बाद 9C के आगे प्लॉट करता हूँ और वहां पे मैं कंपैरिजन करता हूँ कि क्या रीजन है जो मेरे 9 से वो मैच नहीं करें। इसमें सर एक बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियली जैसे मैंने कहा कि हम इसमें जीएसटीआर 1 की डिटेल्स जो थी ओरिजिनली वही हम रिपोर्ट कर सकते थे, हम इसमें कुछ एडिशन डिलीशंस नहीं कर सकते थे। नोटिफिकेशन 31 ऑफ 2019 में ये मुझे कहा कि आप जीएसटीआर 1 और 3B में एडिशनल लायबिलिटी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पहली चीज। फिर सर इसमें एक बहुत बड़ा ये इशू था कि अब फर्स्ट चेक ये हो गया कि अगर मेरा जीएसटीआर 1 में मैंने रिपोर्ट किया यहाँ पे, फिर मेरे को ये होता था कि वो मुझे कॉलम 2 में दिखाना है या कॉलम 5 में दिखाना है, कि तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जब आपने पेमेंट करी है उस इनवाइस की, सपोज मेरा इनवाइस था 18-19 का, अगर मैंने उसकी पेमेंट जाके 19-20 में करी है तो मुझे उसका आगे पार्ट 5 में दिखाना है, और अगर उसकी मैंने पेमेंट 18-19 में कर दिया उसको पैसे पहले दिखाना है, पहले पार्ट्स में दिखाना है। तो बेसिकली दो इसमें मुझे चेक्स थे इसकी रिटर्न बनाने के लिए। पहले मैं जीएसटीआर 1 से सारी डिटेल डिराइव करूंगा, अपनी डिटरमाइन करूंगा, उसके बाद मैं जीएसटीआर 3B में देखूंगा कि कब पेमेंट हुई थी, तो उस पार्ट में मुझको ये अपना रिपोर्ट करना है इनवाइस। बेसिक डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेसिक डिटेल्स होती हैं जनरली ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स होती हैं। फाइनेंशियल ईयर का जो इशू था वो खाली 17-18 में था, जब जीएसटी मिडल ऑफ द ईयर से आया था, जुलाई से आया था। अदरवाइज इन डिटेल्स में कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये इसमें कोई ऐसी खास कोई डिस्कशन का इसमें कोई पॉइंट नहीं है। देन now table number, now we are discussing the details of outward and inward supplies declared during the financial year. यहाँ पे बेसिकली मेरी 3 टेबल्स हैं, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, सॉरी 2 टेबल्स हैं, टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5। इसमें टेबल नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेरी ट्रांजेक्शन थी जिन पे टैक्स की इंप्लीकेशन आती है, जिन पे हम टैक्स पे करते हैं, वो आती थी। टेबल नंबर 5 में मुझे एग्जेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, जीरो डेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी मुझे सेम टेबल में रिपोर्ट करने, अलग कॉलम में। नाउ आई एम डिस्कसिंग टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें टेबल नंबर 4A एंड 4B ऑन दिस साइड आई एम गोइंग टू डिस्कस। 4A जो मेरी
डिटेल्स होती है दैट इज रिलेटेड टू सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब B2C मैंने सप्लाईज करी। B2C सप्लाईज मेरी जो हैं वो मेरी GSTR 1 की टेबल से मैं उनको, सोर्स टेबल GSTR 1 का बन सकती है, वहां से मैं उनको पिक कर सकता हूँ। जैसे टेबल नंबर 5 है मेरी, जो GSTR 1 की टेबल होती है, उसमें मैं वो रिपोर्ट करता हूँ जो मेरी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है और इनवॉइस वैल्यू इज अबव 2.5 लाख, उनको मैं टेबल नंबर 5 में करता हूँ। तो वो मेरा एक सोर्स डेटा बन जाएगा जहां से मैं उनको क्लब करके यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता हूँ। टेबल नंबर 7 में मेरी GSTR 1 की मुझे अदर B2C सप्लाई में रिपोर्ट करता हूँ। टेबल नंबर 9 एंड टेबल नंबर 10 उनकी अमेंडमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं उन सारी चारों टेबल्स को इकट्ठा करके, क्लब करके मैं उनको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता हूँ। टेबल जो B2C की मुझे यहाँ पे सप्लाईज रिपोर्ट करनी है, वहां पे मुझको नेट डिटेल्स रिपोर्ट करनी है। नेट डिटेल्स का मतलब है उनका इम्पैक्ट, डेबिट क्रेडिट नोट्स का इम्पैक्ट, अमेंडमेंट्स का इम्पैक्ट जो कि 18-19 में हुए थे, उनको मुझको यहाँ पे एडजस्ट करके नेट फिगर्स रिपोर्ट करनी है। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द अनएडजस्टेड एडवांसेस। सपोज मेरे B2C कस्टमर ने मुझे एडवांस दे दिया, अगर वो एडवांस मेरा इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुका है तो मेरा यहाँ पे आएगा। अगर वो इनवॉइस मेरा अनएडजस्टेड रखा है तो उसके लिए एक सेपरेट टेबल है, तो वो वहां पे रिपोर्ट करेंगे। इसमें एक इशू हमारा जनरली आता है कि जब हम फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट डालते हैं B2C में, तो मैं सिस्टम के थ्रू डाल सकता हूं, मैं टेबल नंबर GSTR 1 में वो अमेंडमेंट डाल सकता हूं। पर अगर मेरी सेकंड अमेंडमेंट्स होती हैं सेम पीरियड की, तो मुझको सिस्टम अलाउ नहीं करता। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमने इसका देसी तरीका बना रखा है कि हम 3 में डायरेक्ट इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। पर अब इस टेबल में रिपोर्ट करने के लिए आपको वो वाली डिटेल जो आपने 3B में डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स करी हुई है, उनको निकाल के यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी डिटेल्स कि मैंने यहाँ पर फाइनल फिगर बना दी। नाउ आई एम गोइंग टू 4B। 4B में जो मेरी डिटेल्स हैं वो सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B डीलर्स को मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। इसमें मेरी सोर्स डिटेल्स हैं टेबल नंबर 4A एंड 4C ऑफ GSTR 1। 4A में मेरी जो डिटेल्स रिपोर्ट होती है अदर देन RCM एंड अदर देन ई कॉमर्स, एंड 4C में डिटेल्स सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो मेरी यहाँ पे रिपोर्ट होती है। इनको मुझे क्लब करके इसके अंदर रिपोर्ट करना है। यहाँ पे मुझे जो यूआईन होल्डर्स को मैं सप्लाई करता हूँ, एम्बेसीज, UNO एक्सेट्रा, उनको भी मुझे इंक्लूड करना है। स्टॉक ट्रांसफर मेड बिटवीन रजिस्टर्ड यूनिट्स, तो मैं सपोज मेरे 4 प्लेसेस हैं, 4 यूनिट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में, मैं एक स्टेट से दूसरे को ट्रांसफर करता हूँ, वो वाली डिटेल्स भी मुझको इसमें रिपोर्ट करनी है। देन इट शैल नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन RCM बेसिस, जो मेरे RCM पे बेसिस पे मैंने टैक्स पे किया वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा इसमें। और B2 जो मैंने 4A में किया, एक डिफरेंस है इसमें। ओरिजिनली जो लॉ में था कि ओरिजिनली ये था कि आप डेबिट क्रेडिट नोट्स का इम्पैक्ट इसमें नहीं दिखाएंगे, उसको एक सेपरेट कॉलम इन्होंने दिया था, सेपरेट टेबल दी थी जो उसके अंदर आप डेबिट क्रेडिट नोट्स दिखाएंगे। पर बाद में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने कहा कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 56 आप इसको डेबिट और क्रेडिट नोट का नेट इम्पैक्ट लेकर भी आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। Now table number 4, C, D and E. These are basically related to exports. Export, that is 4 is zero dated supply exports on payment of tax, then supply to SEZ and deemed exports, जो EOU वगैरह करते हैं। ये 4CD, जैसे मैंने कहा कि 4 नंबर टेबल में खाली वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स हैं। तो मेरी टेबल नंबर 6A, 6B एंड 6C ऑफ GSTR 1, वहां से मैं ये वाली डिटेल्स डिटरमाइन करूंगा और यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा। और इसमें मैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स का मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इधर नेट इंपैक्ट भी दिखा सकता हूं जैसे कि मेरे को नोटिफिकेशन नंबर 56 2019 में अलाउ किया था, या मैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट सेपरेट भी जो दूसरा एक कॉलम है उसके अंदर रिपोर्ट कर सकता हूं। नाउ आई मूव टू टेबल नंबर 4F व्हिच इज रिलेटेड टू एडवांसेस। एडवांसेस ऑन व्हिच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। जैसे मैंने ऊपर कहा 4A 4B में जहां पे एडवांसेस एडजस्ट हो गए वो तो उन टेबल्स में आ गए, जहां पे एडवांसेस अभी एडजस्ट नहीं हुए, एडवांसेस पे हमने GST पे किया हुआ है, तो वो मेरे आएंगे 4F नंबर कॉलम में। 4F नंबर कॉलम का जो सोर्स है वो मेरा टेबल नंबर 11A ऑफ GSTR 1 एंड ऑल अनएडजस्टेड एडवांसेस जो मेरे वहां से मैं टेबल नंबर 11A से निकालूंगा, वो मुझे उस पर काम करके उसको फाइनल फिगर निकाल के यहाँ पे रिपोर्ट करना है। एडवांसेस पे टैक्स गुड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 66 में गुड्स को उन्होंने पेमेंट ऑफ एडवांसेस से एग्जेम्प्ट कर दिया था। हाउएवर इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज पे अभी भी वो एप्लीकेबल है, पर इसमें जैसे एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ जो हमारे पास आती है। जैसे 17-18 के कुछ एडवांसेस आए थे,
पर वो आज भी एडजस्ट नहीं हुए। एडवांसेस सिस्टम पे रखे, एडवांसेस के टाइम पे मैंने टैक्स पे कर दिया था, पर वो आज भी एडजस्ट नहीं हुए, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या वो इस कॉलम में आएंगे? इन माय व्यू 17-18 के एडवांसेस उस टाइम की जीएसटीआर 9 में जा चुके हैं, उन पे हम टैक्स दिखा चुके हैं। अब वो खाली तभी जब हमारे एडजस्टमेंट में आएंगे, तब मैं जब उस पे फाइनल उसके अगेंस्ट इनवाइस डालूंगा। तो अगर आज मेरी रिटर्न में ब्रॉड फॉरवर्ड जो मेरी रेगुलर जीएसटीआर 1 में पुराने एडवांसेस कैरी होते हुए आ रहे हैं, जिसमें 17-18 के भी हैं, तो वो मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होंगे। मेरे पास खाली वही एडवांसेस होंगे जो मेरे 18-19 के आए हुए हैं और जो अनएडजस्टेड रह गए हैं, राइट। नेक्स्ट कॉलम इज 4G। 4G इज रिलेटेड टू जो मैं टैक्स पे करता हूँ आरसीएम बेसिस पे, जैसे मैं एडवोकेट सर्विसेज लोग लेते हैं या जीटीएस सर्विसेज लेते हैं, जो एज ए रेसिपिएंट टैक्स पे करते हैं, वो वाली डिटेल्स इन टेबल्स में आती है। तो इसमें सोर्स डिटेल्स जो है मेरी टेबल नंबर 3(1)D ऑफ जीएसटीआर 3B है। अभी तक मेरे पास जो पहली मैंने डिटेल्स डिराइव करी थी, डिटरमाइन करी थी, जीएसटीआर 1 से करी थी, पर ये वाली मेरी जो डिटेल्स होंगी ये टेबल नंबर 3(1)D ऑफ जीएसटीआर 3B से लेंगे ये वाली डिटेल्स। इसमें हमारी सारी डिटेल्स इंक्लूड होती हैं जो हमने आरसीएम में पे करी हैं, बट जो मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स करके लाया हूं, जो मैंने कस्टम के टाइम पे आरसीएम में पे कर दिया, वो वाली डिटेल्स यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि वो मैं 3B में टैक्स नहीं करता, वो मैं कस्टम के टाइम पे टैक्स पे कर देता हूँ। पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को मैं यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा, पर जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को मैं जब कस्टम क्लियरेंस पे देता हूँ तो वो मैं यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करूंगा। देन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो मेरे 4I और 4J में है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। सबसे पहले जो मैंने बात कही कि जैसे कुछ कॉलम्स में हमारा नेट फिगर दिखा सकते हैं, हमें ऑप्शन दे दी नोटिफिकेशन नंबर 56 ऑफ 2019 कि आप पहले के कॉलम्स में जो कॉलम नंबर B to E जो मैंने अभी डिस्कस करे थे पहले, उनके अंदर नेट फिगर दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग द ग्रॉस फिगर। अगर मैं वहां पर अपनी नेट फिगर दिखाता हूं तो मुझको ये कॉलम में डिटेल्स डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने वहां पे ग्रॉस फिगर्स दिखाई तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मुझको यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स की डिटेल्स रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स खाली टेबल नंबर 4B से लेके 4E तक जो है B2B ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट, SEZ एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स, खाली वही वाले डेबिट क्रेडिट नोट्स मुझको यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि जो मैंने जैसे शुरू में कहा था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे 18-19 के डेटेड हैं, जो खाली मेरे डॉक्यूमेंट्स 18-19 के डेटेड हैं और 18-19 में रिपोर्ट हुए हैं, खाली वो ही मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। अगर मेरे 18-19 के 19-20 में रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो मुझको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपके फर्दर पार्ट नंबर 5 में जाएगा। तो ये हमें बहुत एक चेक रखना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स डेट भी 18-19 होनी चाहिए आउटवर्ड में और रिपोर्ट भी 18-19 में होनी चाहिए, तो पार्ट 2 में जाएगा। अगर वो रिपोर्ट 19-20 में अप टू सितंबर हो रही है तो पार्ट 5 में जाएगा। देन सिमिलरली जो मेरी अमेंडमेंट्स की बात आती है, जैसे जो मेरी अमेंडमेंट्स हैं, अभी मैंने इनवॉइसेस हैं, इनवॉइसेस में मेरे 2 तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं सर। एक तो मैंने डेबिट एंड क्रेडिट नोट डाले, एक मैंने गलती रियलाइज करी कि मेरी गलती हो गई थी तो अब उसमें मुझे अमेंडमेंट करनी है। तो जो अमेंडमेंट मेरी रिपोर्ट में करता हूँ जीएसटीआर 1 में, वो मैं रिपोर्ट करता हूँ टेबल नंबर 9A में एंड 9C में। 9A मेरा होता है कि अगर मैंने कोई इनवॉइस डाला है जिसमें कोई करेक्शन है, उसमें रिपोर्ट करता हूँ। 9C होता है मैंने डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स डाले थे, उसके अंदर कोई करेक्शन है तो मैं 9C के अंदर रिपोर्ट करता हूँ। और अगर मैंने अभी, मैं जैसे बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने पहले शुरू में अपनी टेबल नंबर जो मेरी B से E तक है उनमें नेट डिटेल्स रिपोर्ट कर दिए हैं तो मुझे अमेंडमेंट अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। पर अगर वहां पे मैंने ग्रॉस दिखाई है तभी मुझको यहाँ पर अलग से अमेंडमेंट दिखाने की जरूरत है। और ये सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि जो अमेंडमेंट मेरी विद इन 18-19 हुई है वही खाली रिपोर्ट करनी है मुझको, जो मेरी 18-19 की 19-20 में होनी है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करनी, या 17-18 की जो 18-19 में हो रही है रिपोर्ट वो भी मुझको एक्सक्लूड करनी है क्योंकि 17-18 की एनुअल रिटर्न में जा चुकी है। तो और ओनली जो नेट इंपैक्ट मेरा निकलता है अमेंडमेंट का वही मुझको यहाँ पे अमेंड करना है। तो बेसिकली हर टेबल पे मुझको पूरा माइंड अप्लाई करना है कि क्या मुझे डिटेल्स करनी है, क्या मुझे रिपोर्ट करनी है। लॉजिक कंसेप्ट मुझे अपने माइंड में हमेशा ये रखना है कि मुझे बुक्स तक पहुंचना है, मुझे खाली 18-19 के इनवॉइसेस कंसीडर करने हैं, 17-18 के नहीं करने क्योंकि वो पीछे जा चुके हैं, और 19-20 के इनवॉइसेस मेरी फर्दर जीएसटीआर 9 में आने हैं। तो ये कंसेप्ट के साथ हमेशा चलना है जब भी जीएसटीआर 9 आउटवर्ड साइड से बनाएंगे।
देन नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 जो है बेसिकली मेरी वो ट्रांजेक्शन होती है जिसपे मेरी टैक्स की पेमेंट नहीं होती है, एग्जेम्प्टेड हो गई, जीरो रेटेड हो गई, उस तरह की जो डिटेल्स होती हैं वो मेरी टेबल नंबर 5 में दिखानी होती हैं। टेबल नंबर 5A एंड टेबल नंबर 5B, ये मेरी जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट होती है, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट है। टेबल नंबर 6A एंड 6B of GSTR 1 कैन बी सोर्स टेबल फॉर दीज डिटेल्स। टेबल नंबर 6A एंड 6B में मैं दोनों तरह की डिटेल्स रिपोर्ट करता हूँ, विद पेमेंट एंड विदाउट पेमेंट। तो मुझे को वहां पे वो वाली डिटेल्स अलग निकालनी है जो विदाउट पेमेंट हुई हुई है, और विदाउट पेमेंट वाली डिटेल्स को मुझको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। हमें इसमें हम एक और चीज चेक कर सकते हैं कि क्योंकि जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होती है उसमें हमेशा LU2 इशू होता है रूल 96A में। तो मुझको ये ध्यान रखना है कि इन ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आपका LUT इशू हुआ हो। LUT इशू अगर नहीं होता तो आपकी ये रिपोर्टिंग गलत हो सकती है, असेसमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इट शुड शैल नॉट इंक्लूड डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, वो आपका सेपरेट कॉलम है। हालांकि नोटिफिकेशन नंबर 56 में जिसमें थोड़ी सिंप्लीफाई करती है, उन्होंने ये कहा कि आप इसके अंदर नेट फिगर भी दिखा सकते हो, डेबिट क्रेडिट नोट्स में सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है। बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सपोज हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स ऑडिट्स के लिए आते हैं एक्सपोर्ट के केसेस में, या वो ये चेक करते हैं कि आपकी विद इन पेमेंट वन ईयर हुई थी या नहीं हुई थी। तो हमको अगर मेरी एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन होती है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सर्विसेज, उसकी मुझको विद इन 1 ईयर पेमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज उस पर मुझे टैक्स डिस्चार्ज करना पड़ता है उस तरह की ट्रांजेक्शन पे। तो वहां पे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है कि मैंने उसको एक्सपोर्ट अपनी ओरिजिनल रिटर्न में एक्सपोर्ट में दिखाया था GSTR 1 में, पर उसका टैक्स उसकी मेरी जो फॉरेन करेंसी में रिसीव, मतलब थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को कि मैंने एक्सपोर्ट दिखाया, एक्सपोर्ट के बाद विद इन 1 ईयर मेरी पेमेंट आनी चाहिए। अगर विद इन 1 ईयर पेमेंट नहीं आती फॉरेन करेंसी में तो वो मेरी नॉर्मल ट्रांजेक्शन बन जाती है, उस पर मुझे टैक्स डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो अगर मैंने GSTR 1 में एक ट्रांजेक्शन दिखा दी जो एक्सपोर्ट दिखाई हुई है, पर उसकी पेमेंट जो है मेरी विद इन 1 ईयर फॉरेन करेंसी में नहीं आई, तो वो मेरी नॉर्मल ट्रांजेक्शन बन जाती है, उसे टैक्स करना पड़ता है। तो वो एक टिकली सिचुएशन बन जाती है। तो उसमें कैसे हैंडल करना है वो एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। मेरे व्यू में वो उस तरह की ट्रांजेक्शन B2C में चली जाएंगी और एक्सपोर्ट में से वो ट्रांजेक्शन हटा देंगे जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर नहीं आई। देन नेक्स्ट कॉलम इज सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये वो सप्लाईज होती हैं जो मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, एक एडवोकेट्स हैं, जैसे वो आउटवर्ड देते हैं पर एडवोकेट रजिस्टर्ड है और उनको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, तो वो अपनी जो सप्लाईज होंगी वो 5C में दिखाएंगे कि जो की ट्रांजेक्शन एडवोकेट्स कर रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, जिनकी रिसिपिएंट के ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है, तो वो 5C में रिपोर्ट होती हैं। और सोर्स टेबल होती है इसकी टेबल नंबर 4B ऑफ GSTR 1, दैट इज B2B सप्लाईज अट्रैक्टिंग RCM, एंड इट शैल नॉट इंक्लूड डेबिट एंड क्रेडिट नोट एज आई सेड। बट अगर डेबिट एंड क्रेडिट नोट मैंने सेपरेटली दिखाना चाहता हूं तो मेरे पास सेपरेट कॉलम है, उसमें भी दिखा सकता हूं या इसमें नेट दिखा सकता हूं, जैसा कि मैं बताया नोटिफिकेशन नंबर 56 में। नाउ नेक्स्ट टेबल इज टेबल नंबर 5D, E and F. These all are related to exempted sales, nil rated, non GST supply. सबसे पहले इसमें ये जो टेबल है ये रूल नंबर 42 का आपको डिटर्मिनेशन करने के लिए हेल्प करती है कि आपकी ITC रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज क्या है। यहाँ से आप फिगर पिक करके उसका रूल 42 का आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि कितना क्रेडिट आपको रिवर्स करने की जरूरत थी, राइट। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग इज कि इसमें हम कंबाइंड, ये जो बाद में सिंप्लीफाई किया था उसमें एक आता है कि आपको ये 3 टेबल्स में अलग अलग डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेंटेन नहीं करी तो आप इसमें कंबाइंड एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन GST सप्लाई, आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंदर कंबाइंड तीनों को दिखा सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है, एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन GST? इनकी जो सोर्स टेबल है दैट इज टेबल नंबर 8 ऑफ GSTR 1। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होती है मेरी वो सप्लाई होती है जो बेसिकली नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी एग्जेम्प्ट करी हुई है अंडर सेक्शन 11 एंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST, and notification number 2 of 2017 related to goods, notification number 12 of 2017 related to services, जो मेरी इन नोटिफिकेशन के अंदर वो एग्जेम्प्टेड करी हुई हैं वो मेरी एग्जेम्प्टेड होती हैं। देन निल रेटेड मेरी वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनके ऊपर रेट 0 प्रिस्क्राइब करा हुआ है। ट्रांजेक्शन नॉर्मल तरीके से चलती हैं ट्रांजेक्शन, पर रेट जो है मेरा 0 प्रिस्क्राइब करा हुआ है, वो मेरी निल रेटेड होती हैं।
3 सर्विसेज नोटिफिकेशन नंबर 11 2011-17 के अंदर ये 3 सर्विसेज जीती जो हैं, जो नोटिफाई करी हुई हैं, जो नील रेटेड हैं. दोज आर रिलेटेड टू लैंड एंड एग्रीकल्चर. Then non-GST supplies are those supplies, basically these are the non-taxable supplies. These are the supplies given in Schedule 3, which are to be treated neither as supply of goods nor as supply of services, like high C sales, bonded warehouse sales, non-territory to non-territory sales. तो ये जो है ये मेरी Schedule 3 की आइटम्स हैं जो मुझे नॉन GST सप्लाई में रिपोर्ट करनी है. देन जो मेरी लिकर सेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल है, वो भी हम नॉन GST सप्लाई के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं. देन अगेन डेबिट नेट क्रेडिट नोट्स का मुझे नेट इंपैक्ट लेके ये दिखाना है, तो मैं वो भी मेरे पास ऑप्शन है. डेबिट क्रेडिट नोट्स को सेपरेट आपने दिखाना है, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है इन कॉलम्स के अंदर. नाउ इन रिगार्ड टू डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, 5H and 5I आर रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शंस इन प्रोवाइडेड अंडर टेबल नंबर 5 विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो इसका जो सोर्स है टेबल नंबर 9B ऑफ GSTR 1 है. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने वहां पे नेट फिगर्स दिखाई हुई हैं इनका इम्पैक्ट लेकर, तो आपको यहाँ पे सेपरेट डेबिट क्रेडिट नोट्स की फिगर्स की रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है. पर अगर आपने वहां पे ग्रॉस दिखाई हुई है तो आपको यहाँ पे नेट फिगर दिखानी पड़ेगी. देन सप्लाईज डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स में मेरी जो मैंने सिमिलरली अगर मैंने वहां पे ग्रॉस फिगर दिखाई है तो मुझको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है. ग्रॉस दिखाई है तो मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करनी है. अगर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे नेट फिगर रिपोर्ट करी हुई है तो मुझको यहाँ पे सेपरेटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. और डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, टेबल नंबर 9A एंड टेबल नंबर 9C ऑफ GSTR 9(1) आर द सोर्स डिटेल्स, जहाँ पे आप वर्किंग करके 9A और 9C से आप यहाँ पे अमेंडमेंट्स की डिटेल्स निकालते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं. और ओनली जो मेरा नेट इंपैक्ट होता है अमेंडमेंट्स का, वो मुझको यहाँ पे रिपोर्ट करने की जरूरत है. अब जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट है जिसमें कोई अमेंडमेंट है जिसपे वहाँ पे मेरी GSTN में कोई GST में कोई डेट में चेंज हो रहा है या मेरा GSTN नंबर चेंज हो रहा है, तो मुझको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. जहाँ पे मेरी खाली वैल्यू या टैक्स में चेंज हो रहा है उसको मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत है. तो अमेंडमेंट्स मेरी जो जिसमें मेरा वैल्यू या टैक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उनको मुझे रिपोर्ट यहाँ दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. Now part 3. Part 3 is related to table number 6, 7 and 8. They are 3 tables. एक टेबल नंबर 6 है जो कहते हैं कि हम जो क्रेडिट हमने लिए हैं वहाँ पे. टेबल नंबर 7 है जो कहते हैं कि क्रेडिट हमने रिवर्स करे या जो मेरे इनएलिजिबल क्रेडिट थे. टेबल नंबर 8 है. टेबल नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 2A. मेरे 2A में जो क्रेडिट इनवॉइसेस आए हैं और मेरा 3B में मैंने जो लिया वो रिकंसिलिएशन टेबल नंबर 8 में है. टेबल नंबर 6 को मैं डिस्कस करता हूं. टेबल नंबर 6 मेरी जो है, इसमें मेरे जो मैंने 3B के अंदर अपने डिटेल्स रिपोर्ट करी थी टेबल नंबर 4A में, ये मेरे टेबल नंबर 4A से मेरी ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स अपीयर करेंगी टेबल नंबर 6A में. ये मेरी ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी टेबल नंबर 4A ऑफ GSTR 3B की सारी क्लब करके. इसमें सब तरह की डिटेल्स होंगी, RCM की भी होगी, ISD की भी होगी, राइट. एंड एक और इसमें जो मैंने रिवर्सल्स भी करे हैं बाद में अपने 3B में, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होके आएंगे. मतलब इसमें ग्रॉस फिगर आएगी, रिवर्सल्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो इसमें ये मेरी ऑटो पॉपुलेटेड आएगी GSTR 3B से. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेबल का कि आप 6B से लेके 6H तक आप इसकी आगे बाइफर्केशन दे सकते हैं, जो आपने अपनी रिटर्न्स में भी ऑलरेडी रिपोर्ट करी होगी. तो 6B में मेरा आता है जो मेरी सारी सप्लाईज होती हैं अदर देन इंपोर्ट्स, RCM, ISD, वो मेरी 6B में आ जाती है. और मेरी जो 6B की सोर्स डिटेल है, दैट इज सोर्स डिटेल्स इज टेबल नंबर 4A5 ऑफ GSTR 3B. यहाँ से मैं इस डिटेल्स को कंसोलिडेट करके 3B से यहाँ से मैं पिक करके यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा. इनिशियली डिपार्टमेंट की इंटेंशन थी कि आप इसको, गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि आप इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज को सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे तीनों चीजों को. पर बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू ये कहा कि आपको सिंप्लीफाई कर दिया कि आपने अगर अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करे हैं इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के, तो आप इसको कंबाइन करके एक फिगर इनपुट के अंदर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं. Moreover, there is a provision to section 16(2) which says कि अगर आपने क्रेडिट लिया और उसकी पेमेंट आपने 180 डेज में नहीं करी, तो आपको उसको क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है.
और फिर आप जब उसकी पेमेंट करते हैं तो उसको रिक्लेम करते हैं। तो जो हम उस वाले प्रोविजन के थ्रू हम रिक्लेम करते हैं उनकी डिटेल्स भी मेरी 6B में रिपोर्ट नहीं होती है, उसका सेपरेट कॉलम है 6H, वहां पे रिपोर्ट होती है। हालांकि 180 डेज वाला प्रिंसिपल मेरे व्यू में जनरली लोग फॉलो नहीं कर रहे, पर फिर भी अगर 180 डेज का हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनकी मुझे अलग से 6H में डिटेल्स रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। देन 6C एंड 6D आर रिलेटेड टू RCM। RCM जो मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से लेता हूं वो मुझे 6C में रिपोर्ट करना था, जो मैं रजिस्टर्ड डीलर से लेता हूं जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं वो मैं 6D में करता हूं। 6.3 है उसका जो सेक्शन है, रेलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 494, जो कि कहता था रिलेटिंग टू परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है और इस 18-19 के टाइम पे ये एप्लीकेबल नहीं रहा। देन सेक्शन 9.3 है जो मेरी और सर्विसेज की बात करता है और चीजों की बात करता है, गुड्स सप्लाईज की, जिसमें मैं रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करता हूँ और जिसपे मैं RCM में पे करता हूँ। तो वो डिटेल्स जो मैं RCM में टैक्स पे कर रहा हूँ उनको मुझको 6C एंड 6D में रिपोर्ट करना है। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मेरे पास जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स मैंने जो हम अपनी GSTR 3B में रिपोर्ट करते हैं वहां पे एक सिंगल कॉलम है, उसके अंदर रिपोर्ट करते थे टेबल नंबर 4A3, और वहां से हम इन डिटेल्स को पिक कर सकते हैं और इसको सिमिलरली यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो रिलेटेड मेरा ITC है उसको मुझको 6E में रिपोर्ट करना है, जिसकी सोर्स टेबल है मेरी टेबल नंबर 4A1 ऑफ GSTR 3B। इसमें भी ये इनिशियली डिपार्टमेंट चाहता था कि आपको इसको इनपुट्स को और कैपिटल गुड्स को अलग अलग बाइफरकेट करके रिपोर्ट करना है, पर उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। इन्होंने कहा कि आप इसको इकट्ठे इनपुट्स के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो, आप अलग अलग डिटेल्स को रिपोर्ट मत करो। फिर देन टेबल नंबर 6F इज रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो कि मेरी टेबल नंबर 4A2 से मैं पिक कर सकता हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली 6G इज देयर, जिसकी सोर्स टेबल मेरी GSTR 3B से टेबल नंबर 4A4 से मैं यहाँ पर उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। नाउ टेबल नंबर 6H। टेबल नंबर 6H जो है मेरी वो बेसिकली रिक्लेम्ड क्रेडिट है, जो मैं अभी आपको डिस्कस किया था कि अगर मैं सेक्शन प्रोविजन टू सेक्शन 16(2) में कहता हूं कि मैंने एक क्रेडिट लिया था, 180 डेज में पेमेंट नहीं करी, रिवर्स किया और फिर उसके बाद पेमेंट करी, तो जब मैं पेमेंट करता हूं तो उस क्रेडिट को रिक्लेम करता हूं। तो जो मेरा रिक्लेम क्रेडिट होता है वो मैं टेबल नंबर 6H में रिपोर्ट करूंगा, और ये वो वाले क्रेडिट्स आएंगे जो मेरे क्रेडिट्स 18-19 के अंदर रिक्लेम्ड हुए। अब मैं इसमें ये बात करता हूँ कि अगर मेरे 18-19 क्रेडिट्स थे 18-19 से रिलेटेड, जो 18-19 में रिवर्स हुए पर रिक्लेम हुए 19-20 में, तो वो मेरे 6H में नहीं आएंगे। 6H में खाली वही क्रेडिट्स आएंगे जो कि मैं रिक्लेम कर रहा हूँ 18-19 में। देन टेबल नंबर 6I इज टेबल ऑफ 6B एंड 6H। फिर टेबल नंबर J। टेबल नंबर J प्रैक्टिकली जब इंटेंशन थी ओरिजिनली उसमें ये है कि इसकी जो डिफरेंस होना चाहिए वो नील होना चाहिए, क्योंकि 6A में मैं देखता हूं तो मेरा ग्रॉस आता है। फिर टेबल नंबर 6B से लेके 6H तक मैं उनकी क्लासिफिकेशन देता हूं अलग अलग कि मेरे किस किस तरह के क्रेडिट्स हैं। फिर 6J में जो होता है मेरा नेट फिगर रिपोर्ट होनी चाहिए कि अगर कोई डिफरेंस है तो वो आइडियली 0 होनी चाहिए। पर इसमें हम बेसिकली प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर मेरी 6A में डिटेल्स हैं पर मेरी बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो मैंने गलत क्रेडिट ले लिया था, तो मैं बाद में टेबल्स में 6B से लेके 6H तक का जो भी वो क्रेडिट है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ और डिफरेंस को मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर देता हूँ और उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऊपर जो मेरे क्रेडिट इन टेबल में क्लासिफिकेशंस वाली टेबल में रहे यही मेरे क्रेडिट्स आगे जाते हैं और यही मेरे फाइनल क्रेडिट्स बनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं क्रेडिट्स के अंदर करेक्शन कर लेता हूँ कि जो अगर मेरी GSTR 3B में ज्यादा रिपोर्ट हो गई है उनको मैं जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है वो 6B के अंदर 6B से लेके 6H तक रिपोर्टिंग उसको करेक्ट फिगर को करके फाइनल फिगर को मैं लास्ट में दिखा देता हूं। वो मैं इस तरीके से प्रैक्टिकली हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देन टेबल नंबर 6K इज रिलेटेड टू ट्रान 1। जो मैं ट्रान 1 के अंदर अपने क्रेडिट मैंने रिपोर्ट करे हुए हैं वो टेबल नंबर 6K में आते हैं, ट्रान 2 के 6L में आते हैं। हालांकि ये जनरली क्रेडिट सारे 18-19 में हो गए थे, पर इसको अगर मुझे चेक करना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से देख सकता हूं और ट्रान 1 ट्रान 2 जो फाइलें हैं उनकी डिटेल से चेक कर सकते हैं। ट्रान 1 जो है 18-19 में क्लोज हो गया था एक्सेप्ट फॉर सर्टेन डीलर
जिनके लिए स्पेसिफिकली डेट एक्सटेंड हुई थी। ट्रांस टू कुछ पीरियड व्हाट आई कैन रिकॉल इज जून 18 तक वो अलाउड था, तो 3 महीने के लिए ट्रांस टू की डिटेल्स में हो सकता है आई हुई हूँ। तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ट्रांस 1 ट्रांस 2 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से चेक कर सकते हैं आप, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उससे चेक कर सकते हैं। फिर then next is table number 6M. 6M is related to the other credits. other credits जैसे होते हैं कि ओपनिंग स्टॉक, मैंने सपोज क्या हुआ कि मैं कंपोजिट डीलर था, कंपोजिट डीलर से मैं रेगुलर डीलर बना, या मैं एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में था, मैं फिर उसके बाद रेगुलर बना, तो जो उनसे मेरे क्रेडिट ट्रांसफर होके आते हैं वो मेरे 6M में रिपोर्ट हो सकते हैं। इन एडिशन टू दैट ITC 02 के थ्रू जो आते हैं, जैसे मेरा बिजनेस मर्ज हुआ या मैंने बिजनेस सेल किया, जो मेरे उस तरह के जो क्रेडिट ट्रांसफर होके आते हैं वो मैं 6M में रिपोर्ट करता हूँ। दीज आर काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ क्रेडिट्स जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पे या कुछ स्पेसिफिक ओकेजन पे ये अराइज होते हैं। तो ये मैं जो क्रेडिट्स हैं ये 6M के अंदर सेपरेटली रिपोर्ट कर सकता हूँ। नाउ टेबल नंबर 7 इज देयर। 7 में दो चीजें हैं, मैं इसमें क्विकली करूंगा, इस टेबल में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इनिशियली अपने जो GSTR 3B में नेट फिगर्स रिपोर्ट करी हुई है तो मैंने ऑलरेडी 6 में वो सारी नेट फिगर्स रिपोर्ट करूंगा, मुझे इनएलिजिबल फिगर्स सेपरेटली रिपोर्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है अगर मैंने पहले की टेबल में नेट फिगर्स रिपोर्ट कर दिए हैं। सेकेंडली कि अगर मेरे पास इनएलिजिबल और ITC रिवर्स की अलग अलग डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो मैं इनको क्लब करके टेबल नंबर 7H में भी रिपोर्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास जैसे टेबल नंबर 7A से लेके 7E तक को मैं ऐड करके 7H के साथ क्लब करके उसके अंदर मैं इसको टोटल डिटेल्स रिपोर्ट कर सकता हूं। ये बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू ये एडिशन हुआ था, राइट। अब मैं फटाफट क्विकली एक बार ये रूल्स बता देता हूं कि जो इनिशियली जो गवर्नमेंट चाहती थी कि आप अलग अलग रिपोर्ट करो। रूल 37 है जो मेरा 180 डेज के अंदर मैं रिवर्सल करता हूँ क्रेडिट्स। अगर मेरी पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं हुई तो उसके बाद मुझे क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। रूल 37 है। रूल 39 है ISD के अंदर क्या होता है कि हम एलिजिबल क्रेडिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर इनएलिजिबल क्रेडिट को भी मुझे अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होकर आया ISD के अंदर वो रूल 39 के अंदर होता है। फिर रूल 42 में वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, जो मेरा ITC रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड आइटम्स होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होता है, वो मेरा रूल 42 में होता है। देन ITC रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स, जो मेरा कैपिटल गुड्स में मैंने खरीदी और जो मैंने एग्जेम्प्टेड के लिए यूज करी, जो प्रोपोर्शनेट मेरा रिवर्सल होने की जरूरत होती है, वो रूल 43 में होता है। ब्लॉक क्रेडिट्स एवरीवन नोज, जो मेरे ब्लॉक क्रेडिट्स होते हैं रेंट ए कैब वगैरह के, जो मेरे ब्लॉक क्रेडिट्स होते हैं वो मेरे सेक्शन 17(5) में होते हैं। फिर ट्रांस 1 के जो मेरे रिवर्सल्स हुए थे वो मुझे 7F में और 7G में करने, जैसे काफी लोगों ने KKC वगैरह का रिवर्सल किया था तो वो मेरे 7F और 7G में रिपोर्ट होंगे अलग से। देन मेरे अदर रिवर्सल्स होते हैं जो मैंने आप बताया, जैसे सपोज मेरा बिजनेस है, मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, रेगुलर डीलर हूँ, पर मैं कंपोजिट में जाना चाहता हूँ, तो जो मेरा क्रेडिट स्टॉक में पड़ा होगा वो मेरा रिवर्स करने की जरूरत होगी, वो मेरे 7H में रिवर्स होंगे। देन टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक रिकंसिलिएशन है जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, राइट। इसमें जो टेबल में बेसिकली इसमें हमारा जो रिकंसिलिएशन होता है दैट इज रिकंसिलिएशन ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज क्रेडिट। जो मेरे पास, इसमें मैं RCM इंक्लूड नहीं करूंगा, ISD इंक्लूड नहीं करूंगा, जो मेरे फॉरवर्ड चार्ज के क्रेडिट्स आए हैं, जो मेरे पीछे मेरे वेंडर्स ने अपने GSTR 1 में डाले हैं और मैंने 3B में लिए हैं, जो उसने 1 में डाले हैं वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट होंगे, वो वाले क्रेडिट्स मेरे यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं या दिखते हैं। इसमें ये ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल आती है 8A में, पर एक इसमें दो जो चीजें थी गवर्नमेंट ने बोली थी, एक उन्होंने प्रेस रिलीज में 18 अक्टूबर 2018 में ये कहा था कि क्लैरिफाई किया था कि वेयर इन इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस टेबल इज फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेशन ओनली एंड डज नॉट इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अवेल क्रेडिट। वो कहते हैं कि ये खाली आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि आप अपना रिकंसिलिएशन कर लें, पर इसमें हम आपकी अवेलेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहे। आप अवेलेबल क्रेडिट आप इसमें अवेल कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं अपने सिस्टम में। देन टेबल नंबर 8A जो होता है वो मेरी कैलकुलेशन आती है, जो जैसे मैंने बताया कि जो मेरे वेंडर्स ने अपने इनवॉइसेस डाले सिस्टम पे वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें ये सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसमें डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वो क्या कर रहे हैं
कि जो मेरे 18-19 के इनवॉइसेज हैं उनका टोटल करते हैं इसमें, चाहे 18-19 के इनवॉइसेज चाहे 19-20 में रिपोर्ट हुए हैं उनका टोटल करेंगे, 18-19 के चाहे उसमें मेरे क्रेडिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स का इम्पैक्ट इसमें निकालेंगे और फाइनल फिगर मुझे रिपोर्ट करते हैं टेबल नंबर 8A में। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट जो मेरे आईटीसी आ रहा है, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट इनवॉइस डेटेड 18-19 होगा वो मेरा टेबल नंबर 8A में आएगा। अब इसका हम रिकंसिलेशन रखने के लिए किसके आगे जाते हैं, हम 8B के आगे जाते हैं। 8B क्या है कि 6B एंड 6H जो मैंने अभी पहले डिस्कस करे थे कि मेरे जो इनवर्ट आईटीसी आया 6B में और रिक्लेम आईटीसी आया 6H में, टेबल नंबर 6H में, उनको टोटल करके यहाँ पे मेरा कंपैरिजन होता है पहला कि 8A और 8B से। इन माय व्यू दिस कंपैरिजन इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो टेबल नंबर 6 है जो मैंने भी आपसे पहले डिस्कस करी है, टेबल नंबर 6B में मेरे 17-18 के भी क्रेडिट्स आ रहे हैं, जो इनवॉइसेस डेटेड 17-18 है और 18-19 में 3B में रिपोर्ट हो रहे हैं, वो मेरी टेबल नंबर 6B में आते हैं या 6H में आते हैं। और टेबल नंबर 8A में मेरे खाली वही इनवॉइसेस हैं जो 18-19 डेटेड हैं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है इनवॉइसेस का, 18-19 के इनवॉइसेस जो 3B में रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें 17-18 के भी इंक्लूडेड है और 18-19 के भी इंक्लूडेड है, तो कंपैरिजन इटसेल्फ इज रॉन्ग। यहाँ पे डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि टेबल 8B को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, इसमें से मुझको 17-18 के इनवॉइसेस अलग निकालने के लिए एक कॉलम देते जिसमें से मैं उनको अलग से रिपोर्ट करता, तब वो रिकंसिलिएशन पॉसिबल था। अब क्या होता है कि जब से मेरे 18-19 के इनवॉइसेस हैं जो मैंने 3B में 19-20 अप टू सितंबर लिए, तो वो मेरे को वो वाले इनवॉइसेस 8C के अंदर रिपोर्ट करने हैं अपने। अब इससे इंटेंशन क्लियर हो जाती है। जैसे टेबल नंबर 8A है जो इनवॉइसेस डेटेड 18-19 है, टेबल नंबर B में मेरे 18-19 के और टेबल नंबर 8C में मेरे 18-19 के जो बाद में रिपोर्ट हुए 19-20 में, वो मेरे क्लब होंगे। तो इसका अगर मैं रिकंसिलिएशन बनाऊंगा तो इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिचुएशन जो भी होगी कि मेरे 8A के अंदर इनएलिजिबल क्रेडिट्स आ रहे हैं जो कि मैं अपनी रिटर्न्स में नहीं लेके गया, 8B में और C में नहीं लेके गया, तो मेरा जो रिकंसिलिएशन का आएगा A माइनस B माइनस C वो पॉजिटिव आएगा। वहां पे डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं है कि आपने ठीक है 2A में ज्यादा दिख रहा था आपका क्रेडिट, आपने कम लिया है, रीजनेबली लिया है, कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि मैंने क्रेडिट अपना रिटर्न में लिया हुआ है, 8B में लिया हुआ है, इसमें रिटर्न 3B में लिया हुआ है, और मेरे वेंडर ने अपनी GSTR 1 में रिपोर्ट नहीं किया हुआ। इसका मतलब अगर वेंडर ने रिपोर्ट नहीं किया हुआ तो वो 8A नंबर कॉलम में नहीं रिपोर्ट होगा। उस तरह की सिचुएशन में यहाँ पे मेरे पास 8D नेगेटिव फिगर आ जाएगी। और नेगेटिव फिगर का मतलब है, इसका मतलब है कि मेरे पास क्रेडिट आया हुआ है, वेंडर ने डाला, तो उस सिचुएशन में डिपार्टमेंट मुझको नोटिस इशू कर सकता है। फर्दर अगर मेरे पास नेगेटिव फिगर आ गई है तो मुझको आगे उसकी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। जो मेरी 8E और 8F में जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मुझे देने की जरूरत नहीं है। बट पॉजिटिव डिटेल आ रही है तो मैं आगे जो डिटेल्स है मेरे 8E में कि जो कि मेरे क्रेडिट्स अवेलेबल थे टेबल नंबर 8A में, पर मैं ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि सितंबर 19 तक लेने थे, वो मैं नहीं ले पाया, तो वो मेरे 8E टेबल में आ जाएंगे। और जो कि मेरे इनएलिजिबल, एक्चुअल इनएलिजिबल थे, वो मैं 8F के अंदर रिपोर्ट कर दूंगा इनवॉइसेस। Anuj, 5 minutes more. सर आई गो क्विकली, मैं जल्दी से बता देता हूँ सर। 8G और ये अभी तक ये रिकंसिलिएशन आईटीसी का था जहाँ पे गैप था, क्योंकि उन्होंने 17-18 के लिए कॉलम नहीं दिया, तो एक वो रिकंसिलिएशन उस फॉर्मेट में पॉसिबल है। एक चीज सर उसमें मैं और ऐड कर दूं, अगर इस टेबल में अगर एक गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप इसकी जगह एक अपना रिकंसिलिएशन बना के सेल्फ सर्टिफाई करके GSTR 9C के साथ आप उसको अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक गवर्नमेंट ने ऑप्शन ओपन रखी हुई है। Then reconciliation of IGST paid on import of goods and ITC credit claimed on import of goods, इसमें भी इशू है, क्योंकि मैं सपोज मैंने गुड्स इंपोर्ट करी 17-18 में, मार्च 17 में मैंने गुड्स इंपोर्ट करी, पर वो गुड्स मेरे गोडाउन में या मेरी फैक्ट्री में पहुंची 18-19 में, अप्रैल 18-19 में पहुंची, तो मैंने क्या किया कि जो मैंने टैक्स पे किया इंपोर्ट पे वो मैंने 8G में 17-18 में किया, पर मैं क्रेडिट लूंगा 18-19 में। और यहाँ पे कहता है कि जो आप 8G में दिखाएंगे टैक्स पेड और 8H में दिखाएंगे
क्रेडिट टेकन वो सेम होने चाहिए, पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो ओवरलैप करेंगे कि एक ईयर से दूसरे ईयर में जा सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरा यहाँ पे इशू आ सकता है, जहाँ पे इसमें भी यहाँ गवर्नमेंट को कॉलम्स ऐड करने की जरूरत है जिससे मैं रिकंसाइल कर सकूं। अदरवाइज गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि यहाँ पे अगर फिगर माइनस में आ गई तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। नाउ मैं ये मेरी एक टेबल 9 है जो मेरी रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स पेड है। इसमें टैक्स पेबल मैंने अभी पहले जो टेबल नंबर 80 जो मेरे 18-19 के इनवॉइसेस रिपोर्ट हुए हैं टेबल नंबर 4M से आ रहे हैं मेरे पीछे से, वो टैक्स पेबल मैं यहाँ से डिटरमाइन करूंगा। यहाँ पे मेरे ऑटो पॉपुलेटेड टैक्स आएंगे GSTR 3B से। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि टैक्स पेबल मेरा GSTR 9 में क्या बना और टैक्स पेड मेरा GSTR 3B में क्या था। पर यहाँ पे भी इशू है क्योंकि टैक्स पेबल मेरा बन रहा है वो 18-19 के इनवॉइसेस के बेसिस पे बन रहा है, पर GSTR 3B में अगर मेरी पेमेंट 17-18 की भी 18-19 में आ रही है तो मेरा रिकंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी ये कॉलम्स ऐड करने की जरूरत थी या है कि 17-18 के क्रेडिट्स भी यहाँ पे अलग मैं रिपोर्ट कर सकूं और जिससे मैं प्रॉपर्ली कंपैरिजन कर सकूं। तो यहाँ पे भी ये रिकंसिलेशन भी पॉसिबल नहीं है एक तरीके से। नाउ आई एम कमिंग टू द डिटेल्स फॉर 18-19 व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड इन 19-20। इसमें मेरी टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी 18-19 के इनवॉइसेस थे जो मेरे 19-20 में गए सितंबर तक। इसमें वो वाले इनवॉइसेस हो गए जैसे इनवॉइसेस मैंने मिस कर गया, 18-19 में मैंने इनवॉइस बनाया पर मैं मिस कर गया, वो मैंने रिपोर्ट किया अप्रैल 19 में या मई 19 में, तो वो उस तरह के इनवॉइसेस मेरे एडिशनल लायबिलिटी होगी टेबल नंबर 10 में जाएगा। या मेरे कुछ एडिशनल क्रेडिट नोट्स थे जो डेबिट और क्रेडिट नोट्स थे जो मैं ओरिजिनली मिस कर गया था 18-19 में, वो मैं 19-20 में लेके गया, तो वो भी मेरे इसमें इन टेबल नंबर 10 और 11 में आएंगे डिपेंडिंग कि अगर वो मेरी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो टेबल नंबर 10 में, अगर लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं तो टेबल नंबर 11 में। देन सोर्स टेबल्स हैं इनकी, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा। टेबल नंबर 12 जैसे सर ने कहा था कि ये ऑप्शनल है, रिवर्सल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये इसमें क्या ITC आपने पहले लिया और बाद में 18-19 में क्रेडिट लिया था, फिर आपने 19-20 में रिवर्स कर दिया था सितंबर तक, तो आपको इसके अंदर रिपोर्ट करने की जरूरत थी। पर अभी डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल कर दिया नोटिफिकेशन नंबर 56 2019 के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली एडिशनल ITC लेने के लिए भी उसको रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शनल डिटेल्स दे दिए कि आपको देने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट टेबल है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें अब मेरे को वो डिटेल्स रिपोर्ट करनी है। मेरे 14 जो रिकंसिलेशन टेबल नंबर 14 का रिकंसिलेशन है वो होता है जो टेबल नंबर 10 एंड 11 जो मैंने एडिशनल लायबिलिटी 18-19 की 19-20 में रिटर्न्स में रिपोर्ट करी है, उसके बेसिस पे मेरा टैक्स पेबल क्या बनता है वो मैं इसमें रिपोर्ट करूंगा। और उसके साथ मैं 3B में मैंने टैक्स उसमें कितना पे किया था वो भी मैं यहाँ से डिटरमाइन करूंगा, 3B में से डिटरमाइन करके यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा, जिससे मेरी क्या है कि पूरी एक तरीके से कैलकुलेशन बन गई कि 18-19 के इनवॉइसेस थे मैंने 18-19 में रिपोर्ट कर दिए, वो मेरे टेबल नंबर 9 में आ गए। 18-19 के इनवॉइसेस थे जो मैंने 19-20 में रिपोर्ट कर दिए, वो टेबल नंबर 10 एंड 11 में आकर यहाँ पे मेरे नेट इम्पैक्ट आ गए। तो जो मेरा टैक्स टेबल नंबर 9 से और टेबल नंबर 14 का जो मेरा टोटल मिला के टैक्स पेबल बनता है वो मेरा आगे GSTR 9C से वो मेरा रिकंसाइल्ड होना चाहिए, राइट। इसमें मुझे इसमें मैनुअल वर्किंग करने की जरूरत पड़ती है टेबल नंबर 3B से टैक्स पेड निकालने के लिए। देन मैंने ये कंपैरिजन की एक समराइज टेबल बनाई थी जिसको मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा। इसके बाद टेबल नंबर 15 है रिफंड्स डिमांड्स की डिटेल्स जो ऑप्शनल है। टेबल नंबर 16 है परचेजेस फ्रॉम कंपोजिट डीलर्स जो भी ऑप्शनल है। टेबल नंबर 17-18 जो HSN वाइज डिटेल्स थी रिपोर्ट करने की जरूरत थी वो भी मेरी 18-19 वगैरह के लिए सब ऑप्शनल है। टेबल नंबर 19 है कि मेरी लेट फी की कंप्यूटेशन वो ऑटो कैलकुलेटेड है, उसमें भी हमको कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। विद दिस आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर।